Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss mains paper of essay that UPSC has conducted in a mains examination in 2023. So guys, in 2023 examination, UPSC asked quite a difficult topics, especially in section A. Okay, so I have already recorded and uploaded few topics that UPSC asked in essay mains examination. So in those recordings, I have given you in detail structure of the essay topic, what you're supposed to write from intro till conclusion. So do check out those recordings. So in this lecture, guys, now I am going to discuss with you the mains 2023 paper, and in which, guys, I am going to discuss with you the topic number 7 in detail. Okay, so topic number 7, that society that has more justice is a society that needs less charity. Okay, so I have already uploaded the recording for topic number 2, topic number 3, topic number 5, and then 7, 8 also I will keep on uploading. So do check out those lectures. So guys, in this topic, what you supposed to write or you should be writing from intro to conclusion, that will discuss the entire structure. So the topic is society that has more justice is a society that needs less charity. Now in this essay, guys, most of the students will choose such a essay because it is related with the pol science, social justice, social issue related topic. So if such a topic most of the students will try to choose, so in case most of the students try to choose such a topic, then you need to focus more on the content and more dimensions that you can explore, angles that you can explore in the essay. So in this essay, guys, we will first, you need to focus on debating the definitions in detail of the social justice, and then your understanding of the charity. Then, and this is very important because every student who has cracked prelim exam, writing UPSC mains examination, is going to have basic understanding of social justice. So you need to have a bit elaborate, broader understanding of social justice, charity, and why, what are the philosophical background that is why we need social justice in the first place, why we need charity in the first place, its necessity, its we don't have social justice, charity, what are its impacts. So all different angles you need to explore, and more the angle or even one extra angle that you can explore, you will get very good marks. So that society that has more justice is a society that requires less charity. So in this essay, guys, introduction, establish essay topic with its relevance. Okay, you can talk about the societies where you can agree with the essay topic, because you can disagree with the essay topic later on. Okay, I will also disagree with the essay topic for 100-150 word in the end. Okay, so one dimension I will write later on, and what content to write I will tell you, that societies that have social justice will are also the societies that need charity. Okay, even if you ensure social justice, you can't do away with the charity. I am disagreeing with the essay topic, that I will add in the end. Okay, so right now, while writing an introduction, you try to agree with the essay topic, establish the essay topic that yes, societies that are have high social justice will need a less charity. तो यहाँ पे आप कोई anecdote, personal story इस तरह से एंगल से लिखो. So आप कोई भी एक personal story बना दो, that in a society that you are living, there was one family, okay, where the grandparents were uneducated, illiterate, labor class they belong to, and most of them were dependent on government charity, government subsidy for their survival, etc. And later on, how one kid in that family got educated, become independent financially, got self-employed, and how out of this education and other forms of empowerments, okay, he became independent, and now he don't need any kind of charity. Social justice enabled him to be independent and be on its own, independent of any charity. तो आप कैसी एक कोई anecdote की story you can use in the essay, or how this social justice removed this dependency on charity programs, etc. So in the beginning, you try to agree with the essay topic, establish the essay topic and its relevance. Then, guys, go to the gist of the essay. Then after 50-70 words, you introduce the essay, or you can use some quote also. You introduce the essay, then go to the gist. In gist, try to provide the entire framework of the essay topic to the examiner. So I'll always tell in all my essay that you should provide the gist like Wikipedia index.
कि विकिपीडिया में इंट्रो के बाद जैसे पूरे इंडेक्स फॉर्मेट में दे गिव द डेटा कि आगे क्या क्या लिखा है पेज में, तो आप भी एक जिस्ट फॉर्मेट में एक पैरा में दो. So what will be the gist? So in this essay, we'll try to debate or we'll try to understand the concept of social justice. Then we'll try to understand what we mean by the charity and why we need charity in the society. Then we'll discuss how over-reliance on charity leads to further increased dependence, and charity is not the solution for all the problems. Then we'll go on discussing how social justice, if ensured, can help us do away with the charity, etc. Then we'll discuss how to ensure social justice and charity. And then in the end, we'll also analyze, or we'll try to discuss that are there some societies, cultures or countries where despite social justice, okay, charity is still significant, and do we need to do charity even despite achieving the social justice. ओके तो ये जो सारा ब्रॉड फ्रेमवर्क ऐसे में जो भी आपने लिखा है एक जिस्ट में उसको इंट्रोडक्शन में दे देना. देन गो टू द मेन बॉडी. नाउ इन मेन बॉडी फर्स्ट आई ऑलवेज टेल यू डिफाइन द ऐसे टॉपिक के कोर टर्म्स, कोर कंसेप्ट, अंडरलाइंग अजम्पशंस जो भी है ऐसे टॉपिक में. मोस्ट ऑफ द ऐसे में कोई कोर टर्म नहीं होगी, तो अंडरलाइंग अजम्पशंस आपको डिबेट करने होंगे. लाइक मैंने ऑलरेडी एक ऐसे अपलोड किया है, ऑल हु वॉन्डर डू नॉट गेट लॉस्ट. ओके तो उसमें कोई कोर टर्म नहीं है, तो आपको वॉन्डरिंग और रिस्क टेकिंग एज अ अंडरलाइंग अजम्पशन, ओके, उस पर थोड़ी डिबेट करनी पड़ेगी. तो डू चेक आउट दैट एसे. बट हियर देयर आर क्लियरली वेल डिफाइंड कोर टर्म्स, सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद दोस कोर टर्म्स. सो एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सोसाइटल जस्टिस. ओके देन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटल जस्टिसेस, दैट इज लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल dimension, etc. So there are multiple or different kinds of social justices. Okay, legal, political, economic, that you are studying in your UPSC paper or your polity paper in general knowledge part. So you can discuss all these kind of social justices that are prevalent in the society. तो आपके जो DPSPs है, they talk about socio-economic justice. You can talk broadly about them in 60-70 words. So social justice also means fair distribution of resources. Okay, you need to empower society where everyone has equal access to these resources, to the opportunities. Then social justice also means social equity. Okay, so you need to ensure equality and equity in the society. And equality में legal, political, constitutional, so legal, political, constitutional, social, all kind of equalities that we need to achieve. So discuss about equality and equity. So society with social equity is a society with the social justice. Then you can discuss the equal opportunity that we need to provide. So access to equal opportunities. Okay, you can talk about this access to equal opportunities, making everyone capable, empowering everyone. So everyone has an opportunity to grow in his life, achieve or excel in his life, and how we can ensure that opportunities. वो आप end में लिखना solution में. Okay, universal education, universal healthcare, etc. So ensuring equal opportunity वो भी social justice में आएगा. Then equal rights, protection of rights, वो भी social justice का एक significant part है. Protection of fundamental rights, human rights, even legal political rights वो ensure कर रहा. So ensuring the individual's rights, fundamental rights, guaranteeing those rights, ये भी एक social justice का parameter है. And then equal access. Okay, equal access to resources, likewise equal access to all the government programs, equal access to government exams, competition. So anything that society has created, there should be equal access to all those things. For example, Varna system mein there wasn't social justice because there wasn't equal access to the jobs, opportunities, growth, etc. So society that has equal access is the society with social justice. So you can talk about fair distribution of resources, social equity, equal opportunity, equal rights, equal access as a social justice. तो 70-80 words आप social justice पे लिखो. Then go ahead in the essay and debate the charity. Okay, explain the idea of charity. So here you can talk about what do you understand by charity. So explain charity as a voluntary act of kindness and assistance. So charity क्या होता है? So charity is more out of voluntary kindness that you show to the person. फिर वो आप किसी को आउट ऑफ वे जाके कोई हेल्प भी करे वॉलंटरीली, वो भी चैरिटी में आ जाएगी. सो चैरिटी इज एनी काइंड ऑफ वॉलंटरी एक्ट ऑफ काइंडनेस, एनी वॉलंटरी एक्ट ऑफ असिस्टेंस दैट यू प्रोवाइड विल बी कंसिडर्ड इन चैरिटी. देन एड्रेसिंग इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स. देन एड्रेसिंग इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, जो भी ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो इमीडिएटली असिस्टेंस जो दिया जाता है.
स्पेशली डिजास्टर्स या कोई वॉर एटसेट्रा सिचुएशन में, टू हेल्प द वनरेबल पीपल, तो वो भी आएगा आपके चैरिटी में. एंड देन एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस इन अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट अडल्टहुड. सो चैरिटी आपको ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सिचुएशन में भी देनी पड़ती है. देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ चैरिटी, व्हाई वी नीड टू डू चैरिटी इन अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट अडल्टहुड. क्योंकि आप जब सोशल जस्टिस की बात करते हो, लोग कैपेबल होकर खुद के अधिकारों के लिए खुद लड़ेंगे, खुद पैसा कमाएंगे, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे. बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू हैपन फ्रॉम चिल्ड्रंस. सो जो चिल्ड्रंस है और उसमें से अगर कोई ऑर्फन किड है, यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू बी इंडिपेंडेंट ऑन हिज ओन. तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड में वी नीड टू प्रोवाइड द चैरिटी, वी नीड टू प्रोवाइड दोज असिस्टेंस. इवन लेट अडल्टहुड, जो बूढ़े लोग हैं, ओके, जिनका कोई आगा पीछा नहीं है, जिनका कोई किड्स आर नॉट देयर टू टेक केयर ऑफ, और किड्स हैव डाइड, और किड्स आर नॉट अटेंडिंग देम, तो इन अडल्ट लोगों से भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली जॉब करो एंड अर्न फॉर योर सेल्फ. तो फिर इन लोगों के लिए भी गाइज, ओके, लेट अडल्टहुड वी नीड चैरिटी. सो एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ चैरिटी, व्हाई सोसाइटी नीड्स इट, और क्यों ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है एक सोसाइटी का, एक चैरिटी का होना. कंपैशन से किसी की मदद करना, तो एलिवेट हिज पेन, सफरिंग एटसेट्रा. तो एक थोड़ा चैरिटी का बैकग्राउंड आप सेट करो ऐसे में. तो नेक्स्ट 60-70 वर्ड्स यू डिस्कस ऑन दैट एस्पेक्ट. देन उसके बाद एक्सप्लेन द आइडिया व्हाई वी नीड चैरिटी और सब्सिडीज फॉर सोशल वेलफेयर. तो अब ये जो चैरिटी क्यों देनी पड़ेगी, व्हाई वी नीड दैट फॉर सोशल वेलफेयर, सोशल असिस्टेंस एटसेट्रा. सो पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है चैरिटी का कि इट हेल्प्स यू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, साइकिल ऑफ पॉवर्टी. Now, in my lectures at KSG, Khan Study Group, where I teach essay ethics part, so there I discussed some economic essay, economic philosophy के essays. तो ये जो economic philosophy के essays हैं, in those essays guys, I discuss one topic about cycle of disadvantage, cycle of poverty. और ये बहुत significant topic है that you should know. तो उसका आप थोड़ा reference यहाँ दे सकते हो, 40-50 वर्ड में लिख सकते हो वो टॉपिक. जिनको वो टॉपिक के बारे में पता नहीं है, यू कैन गूगल. तो ये क्या टॉपिक है, साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो गाइज हमारा जो बचपन का टाइम पीरियड है, ओके, टिल वी रीच प्यूबर्टी, उसको क्रिटिकल पीरियड बोला जाता है. एंड दिस क्रिटिकल पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट, फॉर किड्स डेवलपमेंट. हाउ मच किड्स डेवलप इन दैट टाइम टिल प्यूबर्टी, दैट क्रिटिकल पीरियड ऑन विच डिपेंड्स देयर रेस्ट ऑफ द लाइफ. तो इस टाइम पीरियड में यू नीड टू प्रोवाइड दोज किड्स विथ एक्सट्रीम गुड केयर, good opportunity for development physically, mentally, psychologically, cognitively, perceptually, sport wise, emotions wise, creativity wise, and that will reflect for rest of their life in their journey. So for that purpose guys, in this period अगर हम वो नहीं दे पाते और उस चाइल्ड की ग्रोथ अगर स्टंट हो जाती है और उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, then he will not be able to break out of that cycle of poverty. सो इसका जब सिंपल एक एग्जांपल है कि अगर किसी के पेरेंट्स ही ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट मैनुअल लेबर है, कुछ ज्यादा इनका इनकम सोर्सेस नहीं है, दे वोंट बी एबल टू गिव देयर किड्स गुड क्लाइमेट, गुड एजुकेशन, गुड लाइक टॉयज से लेके सम कोचिंग क्लासेस इन अर्ली चाइल्डहुड, लाइक स्पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करो, उसकी क्रिएटिविटी पे इन्वेस्ट करो, ये नहीं कर पाते. एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर इन घरों से जो बच्चे आते हैं, दे वोंट बी, डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ टैलेंट, देन दे वोंट बी एबल टू कम्पीट विद द किड्स हु गॉट ऑल दोज फैसिलिटीज. तो इसमें जो फिर जो सेटबैक हो जाता है वो उनके बच्चों के फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होने लगता है. एंड इवन उनके ही बच्चे कुडंट सक्सीड प्रोफेशनली, देन वो भी एक मैनुअल लेबर के ही जॉब में अटके रहते हैं. एंड इट क्रिएट्स द साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, साइकिल ऑफ पॉवर्टी. और इससे अगर हमें ब्रेक होना है, ओके, देन वी नीड टू इंश्योर एवरी पर्सन, एवरी किड, irrespective of his background, gets opportunity for development. तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, साइकिल ऑफ पॉवर्टी. और इसको ब्रेक करने के लिए सब्सिडीज देना, वेलफेयर करना, वेलफेयर सब्सिडीज का होना बहुत जरूरी है. चैरिटी बहुत जरूरी है. देन वॉलंटरी असिस्टेंस टू एड्रेस इमीडिएट सिस्टमैटिक गैप्स. देन चैरिटी का और एक जस्टिफिकेशन दो, व्हाई वी नीड चैरिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर लॉट ऑफ सिस्टमैटिक गैप्स, ओके, और इन द प्रोसेसेस आपकी जो सिस्टम डेवलप किया आपने, इट्स नॉट 100% परफेक्ट. ओके, जैसे हमारी जुडिशियल सिस्टम पे मैं बात करता हूं. जुडिशियल सिस्टम में गाइज इवन सुप्रीम कोर्ट बोलता है दैट डेथ पेनल्टी इज अ लीगल लॉटरी. अगर आप अमीर आदमी हो कोई और उसने कोई मर्डर किया, एंड ही गेट्स वेरी गुड लॉयर्स,
ओके, क्रिमिनल लॉयर्स जिनकी फीस करोड़ों में है, देन दे विल इंश्योर ही विल नेवर गेट डेथ पेनल्टी, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट वगैरह वो छुड़ा के लेके आएंगे. बट इफ यू आर पुअर पर्सन एंड कांट अफोर्ड अ गुड लॉयर, then you will suffer very badly. So as a justice system be, our systems are not perfect. Many other such as structural gaps are there in the society, and if until your society gets improved structurally, then we need to do the charity. फिर हमें नालसा में फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी. ओके, जैसे हम फ्री लीगल एड दे रहे हैं. So until our society is not like America, where large population like Europe is middle class, okay, then as long as there are poor population or huge number of poor population in a society, then it is a systematic gap in the society. So poor people can't influence administration etc. They are overly reliant on administration या government. So in cases में we need to provide the charity. So to address these systematic gaps, also voluntary assistance to address immediate problems. चलो सोशल जस्टिस करके एक जनरेशन इंप्रूव हो जाए वो होगा, लेकिन इमीडिएटली जो विक्टिम्स है, इमीडिएटली अगर कोई किसी चीज से सफर कर रहा है, ओके, फिर कोई डिजीजेस हो या किसी के पूरी फैमिली किसी बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, नाउ दैट वो बच्चा एक अकेला है, वी कांट एक्सपेक्ट कि वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होके हर कोई काम करे, वो हो जाएगा वन डे व्हेन ही विल ग्रो अप, ही विल बी इंडिपेंडेंट ऑन हिज ओन, बट टिल देन वो इमीडिएट सिचुएशंस में वी नीड टू डू द चैरिटी. तो इस तरह से कोई डिजास्टर के विक्टिम्स हो या आपके कोई क्राइम के विक्टिम्स हो या कोई वॉर हुआ है किसी रीजन में उसके विक्टिम्स हो या इवन कोविड जैसे पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई जो अर्निंग मेंबर्स थे फैमिली के, तो उनकी फैमिली जो सफर कर रही है, तो उनके लिए वी कैन एक्सपेक्ट देम टू बी इंडिपेंडेंट एंड बी ऑन देयर ओन. तो उनके लिए ऐसे इमीडिएट सिचुएशंस में आपको चैरिटी करना बहुत जरूरी होता है. तो चैरिटी इज नेसेसरी एज अ वॉलंटरी असिस्टेंट इन इमीडिएट crisis situations or till there are systematic gaps in the society. तो उसके लिए भी आपको चैरिटी करने की जरूरत है. Then compassionate aspect of charity and its role in providing immediate relief to individual and communities facing crisis. ये पॉइंट मैंने बताया. So individual and community that facing crisis, in that situation we need to provide immediate charity, okay, and assistance to relieve, alleviate that pain, suffering. Empowerment करना, capabilities का improve करना वो long term में हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में वी नीड टू डू द चैरिटी. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने सोशल जस्टिस डिफाइन किया, चैरिटी क्या होता है डिफाइन किया. नाउ आई एम जस्टिफाइंग द नीड फॉर चैरिटी. अब उसके आगे मैं जाऊंगा तो आई विल डिस्कस कि चलो चैरिटी इन केस में जरूरी है, बट चैरिटी के कुछ प्रॉब्लम्स भी है. देन आई विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट पार्ट कि डिस्पाइट दोस थिंग्स व्हाई वी नीड चैरिटी, इट कांट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स. एंड वो डिस्कस करने के बाद आई एम स्लोली एंटरिंग दिस से दैट चैरिटी के इतने फायदे, but still it has a lot of problems, and because of these problems we need social justice. And if we do social justice, how it will address the issue of charity, we can do away with the charity. Then how to ensure social justice, end में solution दूंगा. And then I will also discuss, despite social justice, charity and social justice both should go hand in hand. There are societies who ensure full social justice but still provide the charity. तो वो justify करके then I will reach the conclusion. तो एक पूरे flow में आपका ऐसे होना चाहिए. ओके, स्मूथली इट शुड मूव इन द आर्ग्यूमेंट. वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होनी चाहिए आपकी. देन सिग्निफिकेंस ऑफ चैरिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज, ओके, सपोर्टिंग वनरेबल पॉपुलेशंस एंड एलिवेटिंग द सफरिंग. ओके, तो इसमें भी चैरिटी की जरूरत क्या है, दैट आई एक्सप्लेन. दैट सिग्निफिकेंस ऑफ चैरिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज और सपोर्टिंग वनरेबल पॉपुलेशन और एलिवेटिंग द सफरिंग. तो वो भी जस्टिफाई करना हाउ वाई वी नीड चैरिटी. तो अब चैरिटी की जरूरत क्या है डिसाइड किया. देन वी विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग कि डिस्पाइट दैट, ओके, वी और डिस्पाइट दिस चैरिटी वी कांट एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. चैरिटी हैज इट्स ओन ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस. सो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स विद द चैरिटी इंस्टेड ऑफ सोशल जस्टिस. तो आप सिर्फ चैरिटी कर रहे हो बट यू डोंट हैव द सोशल जस्टिस, सो व्हाट प्रॉब्लम्स इट विल क्रिएट. सिर्फ आप ओवर रिलायंट हो चैरिटी पे, आप पैरेलली सोशल जस्टिस इंश्योर नहीं कर रहे, सोसाइटी को एम्पावर नहीं कर रहे, उनकी एजेंसी, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये जो सारे पैरामीटर हमने सोशल जस्टिस के डिस्कस किए थे, इफ यू आर नॉट डूइंग देम देन व्हाट प्रॉब्लम्स इट विल क्रिएट. तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड लिखो 100-150 वर्ड में. सो अभी तक हमने इंट्रो लिखा 60-70 वर्ड, जिस दी 60-70 वर्ड, डेफिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस 50-60 वर्ड्स, डेफिनेशन ऑफ चैरिटी 50-60 वर्ड्स.
तो आपका 250 तक ऐसे आ चुका है। देन वाई वी नीड चैरिटी, 100 एक वर्ड लिखे, 350। अब और एक 100 एक वर्ड लिखो, ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ गिविंग चैरिटी, डूइंग चैरिटी विदाउट सोशल जस्टिस। तो फिर उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सो इट्स अ बैंडेड सॉल्यूशन टू सिस्टमैटिक इनजस्टिसेस, ओके, सो इट इज अ बैंडेड सॉल्यूशन टू सिस्टमैटिक इनजस्टिसेस। देन इट्स अ सिम्टम ऑफ इनजस्टिस, ओके। सो पहला तो ये तो बैंडेड सॉल्यूशन है, ये पॉइंट विल डिस्कस कि इट्स अ टेम्पररी सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जरूरी है ये टेम्पररी सॉल्यूशन, बट लॉन्ग टर्म में इट वोंट वर्क। हम हमेशा हर बार चैरिटी नहीं कर सकते, ओके। वी कांट गिव हिम फिश व्हेनेवर ही इज हंग्री, वी नीड टू मेक हिम कैपेबल ऑफ हंटिंग फॉर अ फिश। तो चैरिटी इज अ बैंडेड सॉल्यूशन, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, ओके। इमीडिएटली वो जरूरी है इन इमीडिएट सिचुएशन, बट लॉन्ग टर्म इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, इट्स अ बैंडेड सॉल्यूशन। देन इट इज अ सिम्टम ऑफ इनजस्टिस। और चैरिटी हमें क्यों देनी पड़ रही है? बिकॉज देयर आर सोशल इनजस्टिसेस, बिकॉज देयर आर सिस्टमैटिक गैप्स। हमने जो सिस्टम्स डेवलप किए दे आर नॉट परफेक्ट। एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली, people can't afford it. Healthcare is very costly, people can't afford it. There is extreme inequality in the society. तो ये जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स है, ये जो सोशल इनजस्टिस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस सोशल इनजस्टिसेस हमें चैरिटी करनी पड़ रही है। सो चैरिटी इज अ सिम्टम ऑफ रियल डिजीज, दैट इज सोशल जस्टिस। तो वी नीड टू एड्रेस द रियल डिजीज, सोशल जस्टिस। वो एड्रेस करें तो चैरिटी अपने आप एड्रेस होगी। सो चैरिटी जस्ट अ सिम्टम, हम सिम्टम को क्यूर कर रहे हैं। अंटिल वी क्यूर द प्रॉब्लम, डिजीज, सोशल जस्टिस, तब तक ये चैरिटी का इशू सॉल्व नहीं होगा। फिर ये बैंडेड टाइप सॉल्यूशन करते ही रहेंगे और सिम्टम एड्रेस करके रियल कॉज कभी एड्रेस नहीं होगा। सो इट इज अ सिम्टम। देन डिस्कस हाउ चैरिटी कैन परपेचुएट पावर इम्बैलेंसेस, ओके। फिर चैरिटी की वजह से पावर इम्बैलेंसेस कैसे परपेचुएट होते हैं, ओके। सो बिकॉज ऑफ चैरिटी गाइस, हाउ इट कैन परपेचुएट दिस पावर इम्बैलेंसेस। तो अब चैरिटी की वजह से ओवर रिलायंस हो जाता है, लोग चैरिटी लेके ही खुश हो जाते हैं। They don't fight for their rights, don't ask for the equal access to opportunities, capabilities, ये सारी policies के लिए लड़ते नहीं। And because of that, okay, this power imbalances, power dynamics, जो imbalance है वो वैसे ही perpetuity में रह जाता है। So for example, एक election का example, just to explain you this idea, largely election में गरीब लोग फिर पैसा लेके वोट करेंगे ना, पैसा लेके वोट करेंगे तो फिर पॉलिटिशियन जो जीत के आएगा, ओके, इनको ब्राइब करके वोटर्स को, विल नेवर ट्राई टू इंश्योर और एलिवेट देयर प्रॉब्लम्स। उसको तो अच्छा है वो गरीबी रहे और अगले साल फिर से इलेक्शन में मुझसे पैसा लेके मुझे वोट करे। ही विल नेवर ट्राई टू एड्रेस वेदर दे आर गेटिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, उनके लिए सारी फैसिलिटीज बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, ओके। एंड उनका एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहेगा। सो ये जो चैरिटी है पावर डायनामिक्स को एड्रेस नहीं होने देगा, ओके। अंटिल जो रिच पीपल है वो चैरिटी में थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे गरीबों को, एंड दे विल कीप एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम या कीप कंट्रोलिंग द पावर इन देयर ओन हैंड। और ये जो फिर पावर डायनामिक्स विल नेवर गेट एड्रेस्ड इफ वी ओनली फोकस ऑन चैरिटी। ओनली व्हेन वी विल डू सोशल जस्टिस वी विल बी एबल टू एड्रेस दिस पावर डायनामिक्स, वी विल बी एबल टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पावर, रिसोर्सेस, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, सबको अपलिफ्ट कर पाएंगे। एंड वंस पावर डायनामिक्स इज एड्रेस देन ऑटोमेटिकली वी डोंट नीड टू डू द चैरिटी। सो इसलिए चैरिटी का मेजर प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम, दैट इट कैन परपेचुएट द पावर इम्बैलेंसेस। पावर इम्बैलेंसेस विल नेवर गेट क्वेश्चन, विल नेवर गेट एड्रेस्ड इफ यू ओनली हैव चैरिटी एंड डोंट ट्राई फॉर अ सोशल जस्टिस। देन डिस्कस हाउ चैरिटी कैन परपेचुएट स्टेटस को इन सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स। तो उसी का एक्सटेंशन है। और बिकॉज ऑफ द चैरिटी नाइदर पावर इम्बैलेंस विल गेट एड्रेस बट इट विल लीड टू स्टेटस को। पीपल विल नॉट फाइट फॉर देयर राइट्स, कोई रिवोल्यूशन नहीं होगा, कोई अन्ना हजारे जैसी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होगी दैट विल आस्क, या भी जो विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए जो इश्यू चल रहे हैं, विमेन विल नेवर कम आउट इन मासेस आस्किंग फॉर देयर ओन राइट्स। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होके ये जो पावर इम्बैलेंसेस एड्रेस होना है दैट विल नेवर हैपन। एंड सोशल जस्टिस जो है वो स्टेटस को वैसे ही वैसे रह जाएगा, ओके। सोशल जस्टिस में कोई मोबिलिटी, कोई मॉडिफिकेशन, अपडेशन नहीं होगा, नए नए प्रोग्राम्स, पॉलिसीज ये नहीं बनेंगे। एंड जो भी चल रहा है सिस्टम्स विल बी वर्किंग इन द सेम मैनर, ओके। तो फिर फॉर एग्जांपल आधार का ये, सो आधार से पहले राजीव गांधी यूज्ड टू से दैट हम जो 100 रुपए ऊपर से भेजते हैं, ओके, सिर्फ 10 रुपए गरीब के पास जाते हैं, 80-90 रुपीज सिस्टम खा रही है। सिस्टमेटिक गैप है ये। तो इसमें फिर लोग जो गरीब है, ओके, अंटिल दे फाइट फॉर देयर राइट, जैसे कोई बड़ी मूवमेंट ना हो, ओके, पीपल विल नॉट कम अप विद द सोल्यूशन टू एड्रेस दिस इश्यूज। तो जैसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने आधार कार्ड लाया
एंड सारे मिडल मैन निकाल के वी आर सेंडिंग मनी डायरेक्टली टू पीपल्स पॉकेट। तो हम चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन ये इससे जो नई सिस्टम हमने बनाई, ये जो मोबिलिटी हो रही है, सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिसी जो चेंज हो रही है, लॉज जो अपडेट हो रहे हैं, दैट विल नेवर हैपन एंड दैट्स व्हाई charity will perpetuate power imbalances and will lead to status quo in social justice programs. Then provide example of situations where charitable efforts alone have not addressed underlying issue of inequality. फिर आप लिख सकते हो कि कैसे चैरिटेबल प्रोग्राम बहुत सारे रन करने के बाद भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम इनइक्वालिटी एड्रेस नहीं कर पाए। तो 70 साल से बहुत सारे फैमिलीज में हम पेरेंट्स को सब्सिडी दे रहे थे, पीडीएस में खाना दे रहे थे, बाकी सारी फैसिलिटीज दे रहे थे चैरिटी पे, वही हमें उनके बच्चों के लिए करना पड़ रहा है, वही चैरिटी हमें उनके भी बच्चों को देनी पड़ रही है। तो ये चैरिटी की साइकिल जो है, साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो मैंने पहले बात की थी, वो ब्रेक ही नहीं हो पा रही। सो चैरिटी दे दे के साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, साइकिल ऑफ पॉवर्टी ब्रेक नहीं होगी। ओके, सो लार्ज को स्केल उसको ब्रेक करना है, तो वी नीड अ चैरिटी इमीडिएटली फॉर दैट किड और दैट जनरेशन, बट आगे वाली जनरेशन को भी एम्पावर करना है। ओके, देन वी नीड टू डू द सोशल जस्टिस ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई दैट हाउ जस्ट यू कैन डिस्कस सम एग्जांपल्स कि चैरिटी करने के बाद भी सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटी जो है ना, वो एड्रेस नहीं हो पाई। अब फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, इतने सालों से फाइनेंस कमीशन इतना पैसा वहां भेज रहा है, इतना पैसा सिस्टम में जा रहा है, बट डिस्पाइट दैट सो मच ऑफ इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। ओके, तो चैरिटी में कितने प्रोग्राम दो, बट अंटिल देयर इज सोशल जस्टिस, ये जो बहुत अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें ये लार्ज स्केल एड्रेस नहीं होती, दिस पावर डायनामिक्स विल नेवर गेट चेंज। तो चैरिटी करने के बाद भी आज भी डेवलपमेंट के इतने इश्यूज है, पॉवर्टी के इतने इश्यूज है, इनइक्वालिटी इतनी है सोसाइटी में, एंड दैट्स व्हाई सिर्फ चैरिटी करके थिंग्स विल नेवर गेट सॉल्व। तो ये आपको एस्टेब्लिश करना है ऐसे में। सो वी डिफाइन चैरिटी, इट्स नीड, why it is necessary, but now we discussed that despite charity, without social justice, there will be lot of problems. Then you can go ahead and discuss, explain why we need social justice. Okay, now ये फिर social justice क्यों चाहिए और इससे क्या क्या फायदा होगा। So fair wages, access to education, okay, and healthcare, and can reduce the poverty. Okay, so पहले सोशल जस्टिस से फायदा क्या होगा, दैट देयर विल बी फेयर वेजेस। आप ऐसे प्रोग्राम बनाओगे, बेसिक इनकम लोगों का कितना हो, मिनिमम वेजेस कितने हो, ओके, बॉन्डेड लेबर, इस तरह की चीजें गवर्नमेंट विल स्टॉप मेकिंग द मोर स्ट्रिक्टर लॉज। सो फेयर वेजेस, देन एक्सेस टू एजुकेशन, ओके, यू नीड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एक्सेस टू द एजुकेशन। फिर एंड हेल्थ केयर, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कैपेबिलिटीज अगर लोगों की इंप्रूव करनी है, तो यू नीड टू गिव देम वेरी गुड एजुकेशन, यू नीड टू गिव देम वेरी गुड हेल्थ केयर। तो एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर कैन रिड्यूस द पॉवर्टी, एंड इट हैज प्रूव्ड वेरी स्ट्रांगली दैट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कैन सॉल्व द पॉवर्टी। देन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज और रिलीजन्स दैट हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड दिस पॉलिसी प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। फिर उन कंट्रीज की बात करो लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जहां पे उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ये सारे प्रोग्राम रन करके दे हैव अचीव्ड इक्वालिटी बाय अचीविंग सोशल जस्टिस। They ensured to create an equal society where large population lies in a middle income group or category. So example of countries or regions that have successfully implemented policies promoting social justice and witnessed a decline in poverty rates. Okay, तो वो भी, या इंडिया के भी हमने जो पॉलिसीज की सोशल जस्टिस रिलेटेड, और सडनली उसकी वजह से कैसे हम रिजल्ट देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन जो हमने इंश्योर किया, और उसकी वजह से नाउ वी हैव यूनिवर्सल एनरोलमेंट रेट। तो इस तरह से यू कैन डिस्कस, या हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके सुकन्या योजना से लेके आशा हेल्थ वर्कर के इसमें वी वर्क टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एटसेट्रा। मैटरनल मॉर्टेलिटी हमने कितनी अच्छे से हम कम कर पाए। फिर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जो हमने स्कीम्स रन किए, ओके, उसका आउटकम बाय प्रोडक्ट की आज और पीसीपीएनडीटी एक्ट जो हमने बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया, ओके, उसकी वजह से आज जो गर्ल पॉपुलेशन काफी बढ़ा। तो दैट शोज दैट वी कैन एड्रेस थ्रू लॉज पॉलिसीज लॉट ऑफ इश्यूज, एंड दैट्स व्हाई सोशल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कैन डिस्कस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन जस्टिस ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स। फिर ये जस्टिस पे हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन हाउ वी क्रिएट ओवरऑल
ग्रोथ इन द सोसाइटी, थोड़ा बहुत वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी लिखना। तो जैसे आरटी या डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारे प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, तो उसका 20-25 साल बाद कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड में आउटकम आएगा। सो यू कैन डिस्कस लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ दैट लॉन्ग टर्म benefits of this investment. Then highlight how justice empowers individuals and communities to lift themselves out of poverty and adversity. Okay, so highlight how justice empowers individuals and communities to lift themselves out of poverty. फिर ये सोशल जस्टिस वगैरह से एक बार एजुकेशन वगैरह सब आ जाए तो वो खुद एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी जिसको हम कैपेबल कर रहे हैं, लाइक फार्मर्स को एमएसपीज वगैरह देके या उनके लिए कोई स्कीम्स रन करके या इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह रन करके, सो वंस दैट फार्मर या कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी खुद एम्पावर हो जाए, देन दे विल बी एबल टू लिफ्ट देमसेल्फ आउट ऑफ द पॉवर्टी। तो ये भी कोई एक एग्जांपल लेके कोई केस स्टडी के फॉर्मेट में आप जस्टिफाई करना। सो 101 वर्ड में ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्ट में कि व्हाई वी नीड सोशल जस्टिस, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट जो चैरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके, जो इश्यूज चैरिटी सॉल्व नहीं कर पा रहा, वी कैन एड्रेस देम बाय सोशल जस्टिस। तो उसी का लिंक नेक्स्ट टॉपिक आपने एड्रेस किया। देन एक्सप्लेन हाउ जस्टिस एलिवेट्स नीड फॉर चैरिटी। फिर ये जस्टिस किया तो हमें चैरिटी क्यों नहीं करनी पड़ेगी, ये पॉइंट पे आप थोड़ी आर्ग्यूमेंट करना। सो पहले इट विल एम्पावर सिटीजन्स, इट विल एनेबल सिटीजन्स, ओके, एजेंसी, कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें बढ़ेंगी उनकी। देन इट विल डेवलपिंग एजेंसी एंड कैपेबिलिटीज। ओवरऑल एजेंसी मतलब लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर एंगल से ओके देयर डेवलपमेंट विल हैपन। सो अमर्त्य सेन ने अपने जो फ्रीडम एंड डेवलपमेंट की जो आइडिया अमर्त्य सेन ने दी थी, तो उन्हें जो बोला था कि एक्सपांड द फ्रीडम ऑफ द पीपल। डेवलपमेंट मतलब क्या? एक्सपांड देयर चॉइसेस, एक्सपांड देयर एजेंसी, दैट दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर देमसेल्व्स। उनको सिर्फ पैसा मत दो खाने के लिए, ओके, गिव देम एजुकेशन, तो उससे आप उनका फ्रीडम बढ़ा रहे हो, एजेंसी बढ़ा रहे हो कि उनको बेसिक एजुकेशन मिला तो मैं ये भी जॉब कर सकता हूं, ये भी जॉब कर सकता हूं, ये भी जॉब कर सकता हूं, ओके। तो दैट वे इंप्रूव देयर एजेंसी, इंप्रूव देयर फ्रीडम, इंप्रूव देयर चॉइसेस, कैपेबिलिटीज, ये होता है। एंड दैट फाइनली लीड्स टू वी कैन डू अवे विद द चैरिटी। देन जस्टिस विल ब्रेक साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, साइकिल ऑफ पॉवर्टी। फिर इस साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज, साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकालना है। देन वी नीड टू गिव द किड्स या वो जनरेशन वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम लेवल उनकी इंप्रूव करनी पड़ेगी, मेक देम कैपेबल ऑफ जॉब्स एटसेट्रा, उतने जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वी नीड टू गिव इक्वल एक्सेस टू दो जॉब्स एटसेट्रा। और फॉर एग्जांपल कोई गरीब घर का भी एक लड़का है, कोई लड़की है, ओके, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम रन करते हैं वेयर दे पे कोचिंग फीस फॉर द यूपीएससी एटसेट्रा, स्टाइपेंड देते हैं मंथली। और अगर एक भी बच्चा किसी गांव से उस एरिया से पोस्ट निकाल लेता है, ओके, विद द पावर दैट ही हैव नाउ, वो पूरे अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी का भला कर सकता है, उस एरिया का भला कर सकता है, ओके। सो और बहुत सारे लोगों को वो और मदद कर सकता है टू ब्रेक फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज और फ्रॉम साइकिल ऑफ पॉवर्टी। देन इट रिड्यूसेस इंटरडिपेंडेंस ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स, ओके। तो ये बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी जो है उसका इंटरडिपेंडेंस इट कैन रिड्यूस। तो ये जो वेलफेयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के चैरिटेबल प्रोग्राम, इन पे बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी जो है वो कम होती जाएगी। दे वोंट बी ओवर रिलायंट ऑन प्रोग्राम्स, ओके, रादर दे विल बिकम द वन हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर अ वेलफेयर प्रोग्राम, ओके। दे विल बी द टैक्स पेयर्स इंस्टेड ऑफ ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द सब्सिडीज। तो ये भी इंश्योर होगा। देन मोर रैशनल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। और फिर अब चैरिटी पे कम पैसा डालना पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास बहुत रिसोर्सेस होंगे, पैसा होगा, जो कई सब्सिडीज में या पॉपुलिस्ट मेजर, जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर, फ्रीबीज, ये जो सब्सिडी चैरिटी में हम डाल रहे हैं, वो पैसा गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मोर रैशनली ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स। गवर्नमेंट कैन वेरी इफेक्टिवली यूज दोस फंड्स, okay, government can economically use those funds, or government can able to focus on most those who are most oppressed or most exploited. तो अंत्योदय का जो गांधी का कंसेप्ट था, ओके, अब बहुत सारे लोगों को हमने सोशल जस्टिस से अपलिफ्ट किया, तो दोज हु आर मोस्ट डाउन ट्रॉडन, द लास्ट वन, गवर्नमेंट कैन यूज द रिसोर्सेज फॉर टारगेटिंग देम। तो ये जो टीपीडीएस की स्कीम है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस, तो वो टारगेटेड मैकेनिज्म और रन कर पाएंगे चैरिटी का। अगर सोशल जस्टिस से हम बहुत ज़्यादा लोगों को फ्लिप करते हैं, नाउ हमारे पास बहुत रिसोर्सेस है
और जो डाउन ट्रॉडन ज़्यादा ऑप्रेस लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, वी कैन टारगेट देम एंड वी कैन क्विकली मूव देम। या फिर ये भी ना कर पाए तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा था, गवर्नमेंट कैन मोर रैशनल यूज ऑन प्रोग्राम्स लाइक चंद्रयान मिशंस, मार्स मिशंस, या कोई और बिग स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर या मोर इकोनॉमी की डेवलपमेंट करो। तो वो पैसा जो चैरिटी में, फ्रीबीज में, पॉपुलिस्ट मेजर पे जा रहा है, गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज समवेयर एल्स। तो वो भी एक एस्पेक्ट लिखना। एंड विल रिड्यूस पॉपुलिज्म ओवरऑल इन अ पॉलिसी मेकिंग, और लार्ज अमाउंट ऑफ फंड ऑफ अ गवर्नमेंट दैट गोज इन पॉपुलिस्ट स्कीम्स विल गेट सेव्ड। सो वाई सोशल जस्टिस अगर हम करते हैं देन वी डोंट कैन डू अवे विद द चैरिटी, या उसके ये फायदे होंगे या ये सारे इश्यूज एड्रेस होंगे। ओके, सो अभी तक हमने सोशल जस्टिस डिफाइन किया, चैरिटी डिफाइन की, वाई वी नीड चैरिटी वो सारा डिफाइन किया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द चैरिटी वो डिफाइन किया, हाउ सोशल जस्टिस विल एड्रेस दोस प्रॉब्लम ये डिफाइन किया। ओके, एंड हाउ दैट जस्टिस एलिवेट्स दिस नीड ऑफ चैरिटी, और सोशल जस्टिस से फिर चैरिटी को हम एलिवेट और एंड कैसे कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। सो नाउ लॉजिकली द नेक्स्ट पॉइंट इज इन योर एसे, हाउ टू इंश्योर द सोशल जस्टिस। तो हाउ टू अचीव सोशल जस्टिस एंड चैरिटी, दोनों कैसे करना है, ये सारा सोल्यूशन का पार्ट, 100, 150, 200 वर्ड आप इस पे भी लिखो। सो हाउ यू विल इंश्योर सोशल जस्टिस, सो डिस्कस इनिशिएटिव्स दैट फोकस ऑन एम्पावरमेंट, ओके, सच एज वोकेशनल ट्रेनिंग, ओके, देन स्किल बिल्डिंग, माइक्रो फाइनेंस एंड एजुकेशन। तो सारी जो भी आपके पास ऑप्शंस, आपके थॉट्स, नई नई आइडियाज है, सारी यहां पे लिख डालो, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रहा है उससे ज्यादा थोड़ी यूनिक वाली सॉल्यूशंस देना, कोई नए उसमें अमेंडमेंट्स हो वो दे देना। तो ओके, फॉर एग्जांपल आरटीई तो 6 स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी है, तो आप सजेस्ट करो कि आरटीई 10 स्टैंडर्ड तक की जाए। ओके, राइट टू एजुकेशन 10 स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट दे। तो कोई भी इस तरह से ओके आप कोई सजेशंस दो जिसकी वजह से सोशल जस्टिस और अच्छे लेवल से हो जाएगा, या चैरिटी भी करनी है तो किस तरह से हम अच्छे से कर सकते हैं, तो यू कैन डिबेट दैट। सो डिस्कस इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन एम्पावरमेंट, ओके, इंप्रूविंग कैपेबिलिटीज सच एज वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो दिया जाता है, स्किल एजुकेशन जो दिया जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस जिनसे हम लोगों को और एम्पावर कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं, वो सारी स्कीम्स, एंड एजुकेशन, उसके बारे में आप बहुत सारे सजेशंस देना। देन उसमें भी फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, अब ये जो सीएसआर का प्रिंसिपल है वो भी आगे मैंने मेंशन किया है, दैट आई विल डिस्कस देन, ओके, विच इज अ राइट ब्लेंड, कि वो सोशल जस्टिस को भी एड्रेस कर रहा है एंड चैरिटी को भी एड्रेस कर रहा है। तो दोनों कैसे, वो भी एक पॉइंट में लिखना है, वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। देन शेयर स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू जस्टिस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। बहुत सारे न्यूज़पेपर में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आती है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप ने गवर्नमेंट के मदद से, लोगों के फंडिंग वगैरह से बहुत बड़ा कुछ काम किया, अचीवमेंट्स किए, या गवर्नमेंट सपोर्ट से किसी ने बहुत बड़े लेवल पे आउटकम लाया, कुछ लाइफ में कोई बड़ा चेंज किया। तो ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हो उसको आप यहाँ पे कोट कर देना, दैट हाउ सोशल जस्टिस ओके चेंज द लाइफ ऑफ दोज पीपल। देन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको मेंशन करना, वो भी यही चाहते हैं, एक सॉल्यूशन। यूनाइटेड सस्टेनेबल गोल्स विच टॉक अबाउट पॉवर्टी रिडक्शन से लेके बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड गोल्स जो है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ओके, दे ऑल्सो टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, और इनको कितनी क्विकली हम अचीव कर सकते हैं वो डिबेट करना। देन कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज सी ये ऐसे जो है सोशल जस्टिस एंड चैरिटी इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट पॉलिसीज। तो लेफ्टिस्ट वालों का कहना है कि सब्सिडी बहुत जरूरी है, चैरिटी जरूरी है, पॉपुलिस्ट मेजर्स को पॉपुलिस्ट नहीं बोल सकते, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, करने पड़ेंगे हमें। वाइल राइटिस्ट पॉलिसी बोलती है कि चैरिटी आर पॉपुलिस्ट मेजर, दिस फ्रीबीज आर बैड, देयर शुडंट बी एनी फ्रीबीज, ओके। सो ये जो राइटिस्ट पॉलिसी बात कर रहा है, तो हमने जो सीएसआर लाया था कंपनीज एक्ट 2013 में, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लीगलाइज दिस सीएसआर, जिसमें 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो है कंपनी को अपने पिछले 3 साल का उसका एवरेज नेट प्रॉफिट कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज नीड टू स्पेंड ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज। तो सीएसआर में उसमें एक क्लॉज है कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज आप फाइनेंस कर रहे हो वो क्लियरली वहां पे लिख के दी है उस एक्ट में, लॉ में, कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, देन वोकेशनल स्किल्स एटसेट्रा। तो ये जो सारी स्कीम्स पे जहां पे पैसा डाला जा रहा है, ओके, भले वो चैरिटी हो, बट मोस्ट ऑफ दो स्कीम्स दैट सीएसआर में उनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, दे एम्पावर द सिटीजन्स, दे एम्पावर द सोसाइटी,
ओके, द इम्प्रूव द सोसाइटीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे लॉज हो सकते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन पे, डिजीजेस के रिलेटेड कोई हॉस्पिटल चला सकता है, ओके, एजुकेशन पे, वोकेशनल स्किल्स, उन पे पैसा खर्च किया जा सकता है। सो इट गिव्स यू द स्कीम्स जिस पे ही आपको पैसा खर्च करना है। तो ये जो चैरिटी में भी पैसा जा रहा है ना, इट इज गोइंग टू एम्पावर द सिटीजन, इट इज गोइंग टू क्रिएट बेटर ह्यूमन रिसोर्स फॉर द कंट्री। तो इसकी वजह से इससे ज्यादा जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, लोग भी एम्पावर हो रहे हैं। तो CSR इज परफेक्ट बैलेंस बिटवीन सोशल जस्टिस एंड द चैरिटी। लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट का मिडल पॉइंट है, तो आप उसको भी लिख सकते हो यहां पे। देन हाईलाइट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड वेज टू इंप्रूव देम। ओके, सो एम्फसाइज द नीड फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन टू अचीव ग्रेटर जस्टिस। फिर चलो सोशल जस्टिस तो ये चल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में आप ये भी लिखो कि ग्लोबल लेवल पे कैसे इसका कोलैबोरेशन हो सकता है। ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के आइडियाज आ रही है, आपको उनको थोड़ा डिबेट करना, क्योंकि आज हम जो सारे हाई एंड मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम ओके आर उसके लिए जो रेयर मेटल्स है, कोबाल्ट एटसेट्रा, वो माइन हो रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और वहां पे बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग जो उन माइंस में बहुत हॉरिबल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ओके। और ये जो कोबाल्ट सारा वहां से माइन होके पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को फ्यूल कर रहा है, और आगे इससे पूरी कंट्रीज जो हाई एंड मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है। और हम ये जो मोबाइल खरीदते हुए टैक्सेस पे कर रहे हैं, बहुत सारी यूरोप अमेरिकन कंट्रीज में टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, वो टैक्सेस तो उस कंट्री को मिल रहे हैं। इसमें कॉन्गो को क्या मिल रहा है? या मोस्ट ऑफ द क्लॉथ मेकिंग जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो वहां पे कोई लुई फिलिप कंपनी है, वैन ह्यूसेन, ऐसे कोई ब्रांड्स है, वो फैक्ट्री डाल रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश का मैन्युअल लेबर, उनका जमीन, उनकी सॉइल, वाटर, वहां प्रोड्यूस हुआ कॉटन, और वो सारा यूज करके उन लोगों की मेहनत से कपड़े बने। वो 1000 करोड़ में खरीद के उन्होंने कुछ बांग्लादेश को टैक्स पे किया, वो कपड़े आमेरा यूरोप में लेके गए, वहां पे 5000 करोड़ में बेचे, सिर्फ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सारा आगे का काम करके थोड़ा बहुत। अब 5000 करोड़ में जो टैक्स पे किया उस कंट्री को किया, व्हाट लेबर ऑफ दैट कंट्री डिड इन द एंटायर चेन ऑफ प्रोडक्शन। तो ग्लोबलाइजेशन में जो सप्लाई चेन्स काफी ये फजी हो चुकी है, काफी अनक्लियर है, तो उस केस में फिर बांग्लादेश के जो गरीब है उनको भी ये सोशल वेलफेयर हो, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हमें बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है टू इंश्योर दैट सोशल जस्टिस। एंड दैट्स व्हाई वी नीड कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, जिसमें हर कंट्री जो टैक्स पे कर रही है वो पैसा वहां जाए, और वहां से इट विल गेट चैनलाइज टू द कंट्री लाइक बांग्लादेश और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इवन टू इंडिया। बहुत सारे इंडियन स्टेट्स विच आर पुअर, तो वहां पे लोगों के प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए। सो यू कैन डिस्कस लिटिल बिट हाउ वी नीड ग्लोबल कोलैबोरेशन टू एड्रेस द सोशल जस्टिस। देन ऑल्सो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज और अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन। फिर कमिंग बैक टू दिस ग्लोबल कोलैबोरेशन, आप ये भी लिख सकते हो, ईरान में जो हिजाब वगैरह जैसे इश्यू चल रहे हैं, या तालिबान में विमेन को एजुकेशन बैन किया, इट इंपैक्ट्स देयर एंटायर डेवलपमेंट, ग्रोथ उन लड़कियों की। तो यहाँ पे वी नीड ग्लोबल कोलैबोरेशन टू इंश्योर इवन गर्ल्स विल हैव इक्वल राइट टू एजुकेट और बी इंडिपेंडेंट, अर्न फॉर देमसेल्फ। तो वो भी आपको एंगल लिखना है। देन एम्फसाइज द नीड फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन, देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन, ये भी लिखना है। बहुत सारे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, ये भी सोशल जस्टिस का पार्ट आता है, जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट वगैरह। तो इससे भी इवन ट्रांसजेंडर के खिलाफ बहुत सारे एट्रोसिटीज होती है, तो उनको भी, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हमें लॉज चाहिए, तो वो भी सोशल जस्टिस के पार्ट में आएगा। देन टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड रिसोर्सेस, ओके। देन टारगेटेड डिलीवरी, आपको ये जो सोशल जस्टिस इंश्योर करना है, या चैरिटी भी हम जो दे रहे हैं, इट शुड बी टारगेटेड, दोज हु आर रियली नीड इट, ओके। मिसप्लेस सब्सिडीज नहीं होनी चाहिए, योर सब्सिडीज शुड बी एक्सट्रीमली टारगेटेड एंड इफेक्टिवली शुड बी रीचिंग दोज हु रियली डिजर्व। तो वो भी टारगेटेड डिलीवरी अच्छे से करो, तो सोशल जस्टिस एंड चैरिटी दोनों अच्छे से हो पाएगा। देन प्रोवाइड एक्सेस टू क्रेडिट, बहुत बार एक मेजर इश्यू है, okay, you can have great talent and you are very meritocrat student, but despite that, if you have any business idea but you are from middle class family and no one is ready to finance that idea, you don't have anything mortgageable property to get finance and start your business, then nothing will happen. So that's why you need effective access to the credit, okay. जितना ज्यादा access to credit you will be able to provide टू द पीपल। तो हमने जो मुद्रा लोन स्कीम में किया, छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ाओ,
बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ा के बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो चुकी है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो आप जीके का थोड़ा नॉलेज यहाँ पे लिखो। तो एक्सेस टू क्रेडिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू इंश्योर सोशल जस्टिस। देन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ओके, ये भी बहुत जरूरी है। आप हेल्थ केयर में बीमार पड़ने के बाद लोगों को तो बहुत सारे चैरिटी में प्रोग्राम, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, वो बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भी बहुत कम खर्चे में या जीरो कॉस्ट भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है। लेकिन ये सारा बीमार पड़ने के बाद व्हाई टू डू दैट चैरिटी, जो हमारा टॉपिक है, अगर हम सोशल जस्टिस पहले से इंश्योर करें, इफ यू एबल टू क्रिएट गुड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, okay, where every person is getting good quality health care, okay, या बीमार ही नहीं पड़ रहे, उनकी पहले से we give them good nutrition, all these things. So preventive health care में हम फोकस कर रहे हैं, then we don't have to go for charitable institution, charitable hospitals. तो preventable health care के बारे में लिखो and how it can play role in social justice. Then grassroots movements, okay, देन ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी ग्रास रूट मूवमेंट्स, उनका भी काफी रोल है सोशल जस्टिस इंश्योर करने में, एम्पावरमेंट कैपेबिलिटीज स्पेशली रिलेटेड टू वीमेन। एंड देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनका भी काफी रोल है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्कूलों में हमने एज अ चैरिटेबल हो प्रोग्राम दैट इज मिड डे मील स्कीम, वो रन कर रहे हैं। लेकिन अभी बीच में एक यूपी के किसी विलेज से फोटो आए थे कि खाने में रोटी और नमक दिया जा रहा है मिड डे मील स्कीम में। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, करप्शन से लेके जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स मैंने बात की, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की बात की, तो इसमें वी कैन प्ले अ रोल और टेक अ हेल्प ऑफ अ प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट दे किसी प्राइवेट कंपनी को जो नरिश्ड फ्रूट बिस्किट्स बनाए, फोर्टिफाइड बिस्किट्स बनाए विथ प्रोटीन, आयोडीन और जो भी चीजें, फॉलिक एसिड एक्सेट्रा से बनी हुए, एंड डायरेक्टली हर स्कूल को वो बिस्किट जाएंगे एंड डायरेक्टली हर बच्चे को बिस्किट का पैक मिलेगा। सो व्हाई रन दिस अनवांटेड एंटायर मशीनरी ऑफ मिड डे मील स्कीम और हर स्कूल में जो खाना बन रहा है, वी कैन ट्राई टू कम अप विद सच अ बेटर सॉल्यूशंस तो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इससे चैरिटी भी जो कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, सोशल जस्टिस भी अच्छे से लोगों के तक पहुंच पाएगा। सो वी कैन डिस्कस दैट। तो यहाँ पे मैंने इन जनरल कुछ गाइडलाइंस दी है, आप अपना जनरल नॉलेज का, जीके पेपर का नॉलेज यूज करके इसको और रिफाइन करना और स्टैटिस्टिकल डेटा इसमें ऐड कर देना, ओके, या इसको और कोई एग्जाम्पल से सपोर्ट करना, सो दैट विल बी वेरी ऑसम। तो हमने सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर करना अलॉन्ग विथ चैरिटी, दोनों कैसे एक दूसरे को इंप्रूव करे, दैट वी डिस्कस्ड। नाउ जो ऐसे टॉपिक बोल रहा है उसको थोड़ा डिसएग्री करो, अदर साइड ऑफ द एसे। So other side of the essay मतलब क्या? Disagree with the essay that charity is required despite justice. Okay, so we need a charity. Charity is required despite justice. तो ये आपको जस्टिफाई करना है। आप टोटली डिसएग्री कर रहे हो ऐसे के साथ। ऐसे क्या बोल रहा है? सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। तो ज्यादा जस्टिस लेस चैरिटी होगी, ओके, एंड इफ यू हैव अल्टीमेटली अचीव्ड सोशल जस्टिस देन देयर वोंट बी नीड ऑफ चैरिटी। तो यहां आप डिसएग्री कर रहे हो। नो, डिस्पाइट अचीविंग फुल सोशल जस्टिस, ओके, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स वी नीड चैरिटी, वी नीड बोथ। सो फिर उसको कैसे जस्टिफाई करो? चैरिटी इज रिक्वायर्ड डिस्पाइट जस्टिस। सो डिस्कस हाउ चैरिटी कैन फिल इमीडिएट गैप्स व्हाइल एफर्ट्स आर मेड टू एड्रेस अंडरलाइंग इनजस्टिसेस। तो आप सोशल जस्टिस से अल्टीमेट सोशल जस्टिस करके लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को परफेक्ट बना पाओगे, सारे सोशल इनजस्टिस एड्रेस कर पाओगे। लेकिन जब तक वो अचीव नहीं होते, फाइनल स्टेज तक हम नहीं पहुंचते, ओके, तब तक देन जो इमीडिएट गैप्स है उनको एड्रेस करने के लिए वी नीड टू गिव द चैरिटी। ओके, सोशल जस्टिस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम आएगा, शॉर्ट टर्म में इमीडिएट स्टेप्स में चैरिटी इज द ओनली वे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी दैट सपोर्ट सिस्टमैटिक चेंज। फिर ये जो स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी, अब अभी जो मैंने सीएसआर का पॉइंट बोला दैट इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी। सीएसआर में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट 2% अमाउंट खर्च करे अपने नेट प्रॉफिट का फॉर सोशल वेलफेयर, लेकिन जो 2% सोशल वेलफेयर पे पैसा खर्च कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट मनी इज गोइंग ऑन अ चैरिटेबल वर्क, sorry, the money that is going in charitable work is going on strategic sectors, vocational skill development, healthcare improvement, environmental improvement, etc. So it is not wasted in giving freebies. They empower the society in CSR. तो वो CSR में जो फिलैंथ्रोपी हो रही है उसको बोला था स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी, वेल टारगेटेड फिलैंथ्रोपी। तो उस तरह के स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी कर पाए हम, ओके, देन इट इज अ
charity that ensures social justice. Okay, it is not just charity that wastes money, it is the charity that empowers. So strategic philanthropy ये बहुत important है, और strategic philanthropy से charity is required which eventually also ensure the social justice. तो एक strategic way से philanthropy करो, okay, then social justice and charity will go hand in hand. Then उसके बाद भी you can talk about many Scandinavian countries, Sweden, Norway, Ireland, etc. European countries, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल जस्टिस है. ऑल कास्ट, जो हमारे यहाँ पे कास्ट सोसाइटी के जो डिस्क्रिमिनेशंस, स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, सारी चीज़ें एड्रेस कर दी है. एवरीवन हैज़ गुड एजुकेशन और लार्ज पॉपुलेशन इज इन मिडिल क्लास. डिस्पाइट दैट इन उन सारी कंट्रीज में देयर इज अ यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन, देयर इज अ यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ केयर एंड देयर इज अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. ओके, अब ये जो चीज़ है, बिकॉज दे नो सोशल जस्टिस भी हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. ओके, अगर ये ना मिल पाए देन दैट विल इम्पैक्ट दैट स्टूडेंट और दैट पर्टिकुलर पर्सन. किसी के बच्चे के वहाँ पे कोई माँ बाप की डेथ हो चुकी है, बच्चा है, इफ़ यू डोंट गेट द गुड फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, एक बेसिक सपोर्ट फॉर हिज सर्वाइवल, ओके, देन ही विल नेवर एबल टू ग्रो एंड बी इंडिपेंडेंट. तो उन कंट्रीज में जहाँ पे इतना ज़्यादा सोशल जस्टिस है, इवन दे इंश्योर और प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज, चैरिटी. एंड फॉर यू कैन इवन राइट एग्जाम्पल ऑफ ओबामा केयर. सो दुनिया की सबसे बड़ी सोशलिस्ट स्कीम है विच इज रन बाय दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री. ओके, तो वो जो पैसा बहुत चैरिटी या फ्री ऑफ कॉस्ट पे चैरिटेबल हेल्थ केयर पे खर्चा किया जा रहा है ओबामा केयर में, इज नथिंग बट okay, shows or is an example that even countries that have strong social justice, charity is still being done for in a positive way, in a good way. Okay, जिसको what do you call positive affirmative action, the word that is used, तो वो करना जरूरी है. और that is being done, और ये आइडिया यूनिवर्सली प्रमोट की जा रही है. यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन, यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ केयर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम. अब इसके बाद देन कंक्लूजन को आप जाओ. अब लार्जली इसमें फिर कंक्लूजन क्या होगा, तो लार्जली इसमें आप समराइजेशन करो, अभी तक आपने क्या क्या लिखा, और एग्जामिन सिनेरियोज वेयर जस्टिस एंड चैरिटी कैन कंप्लीमेंट ईच अदर एंड हाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड चैरिटी वर्क्स. तो लार्जली आप सारे ऐसे को पहले समराइज करते जाओ. सो हाउ यू विल गो फॉर कंक्लूजन, हाउ आई विल राइट इट. सो इन दिस एसे वी हैव डिस्कस द आइडिया ऑफ चैरिटी. In this essay, we have discussed the concept of social justice, and we discussed the interplay between charity and social justice, how one without other can't achieve the full development of the society, can't create the equality or ensure all kind of justices. And so we can't have only one, but we need the interplay of both. And in essay, we also discussed how we can ensure both charity and social justice hand in hand with the mechanisms like CSR, global collaboration, strategic philanthropy, etc. Okay, and that's how one day when we manage to ensure social justice, charity, okay, we will be able to address the all problems and finally able to realize one day the idea of welfare state. Okay, and so this rightist leftist policies, instead of attacking each other, okay, should merge their hands, join the hands to ensure and finally realize the goal of welfare state. तो इस तरह से कोई ऑप्टिमिज्म के साथ you can try to conclude. So examine scenario where social justice and charity can complement, कि कैसे वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. ओके, एंड दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू फाइनली रियलाइज द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट. और अंत्योदय जो गांधी को कहना था, दैट एवरी लास्ट एंड डाउन ट्रॉडन, okay, we will be able to address his problem through charity and social justice and finally able to realize the dream of democracy. तो थोड़ा romanticize करके you can try to discuss the conclusion. Okay, so this is how you can use guys this chart or structure and try writing the entire essay using this chart. तो मैंने जितनी अभी तक डिबेट की, आप ये वो सारी लिखते भी जाओ और अपने वर्ड्स में इसको प्रोड्यूस करो, तो भी आपका 1000 वर्ड का essay हो जाएगा. So do check out my other essays also that I have recorded and try writing those essays. Okay, and do like and subscribe this video and share with your friends, and also stay tuned to my Darshanik IAS YouTube channel for more videos. Okay, and also join me on Telegram, UPSC Ethics, where I will share this PDF. You can download that PDF
from the Telegram channel. Link is given in description. And also download my app from Darshanik IAS by Kadam sir from Google Play or App Store. And stay tuned there, and in next by December 23 or Jan 24, I will be launching full comprehensive essay writing and ethics courses. Okay, so it will be like almost 120 hours plus ethics course and 100 hours around essay course, where I will give extreme in detail, in-depth discussion of essay and ethics topic. And I can guarantee you, other than my classes and these notes that I will provide you on my app, you don't have to do anything else for these 2 papers. You will be able to score very well. So thanks for listening guys, and stay tuned for more videos.